Good Good morning. morning, ma'am. Morning, Good ma'am. morning. Good morning. Good morning. Okay, so yesterday we had done questions, except one question, we had almost finished the exercise 13.6. दो क्वेश्चन रह रहे थे. दो नहीं, one ही, only one question is left. Question number 8 तो मैंने आपको पहले ही करवा दिया था. I said question number 7 हम कल करेंगे. यही है ना, 7 ही तो बचा है. Question number 8 मैंने करवा दिया था. That soup वाला question, if you remember. That there is a patient and they are giving soup daily in cylindrical bowl with the diameter, और आपको बताना था ऐसे 250 patients के लिए कितनी क्वांटिटी में सूप बनता होगा. Is that okay? वहां तक जितना हमने कल फिनिश किया है वो सबको सब कुछ क्लियर हो गया है. Yes, ma'am. So today we are going to do this last question, question number 7 for this exercise. Second last actually, क्योंकि ये हमने कल छोड़ दिया था. This is pretty long question. And then we are moving to another exercise, which is 13.7, right? 13.7 is, I guess, the easiest exercise of all the exercises. Trust me, there is only one formula, actually one or two formulas. Precisely, you are going to learn only one new formula, and all the questions, they are directly asked to you. किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी वेरिएशन नहीं है. बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और आपको बहुत ही इजीली समझ में भी आ जाएगी. बस आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है एवरीवेयर. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस डू दिस क्वेश्चन नंबर 7. दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू अ पेंसिल. व्हाई डिड आई से सो? क्योंकि पेंसिल अगर आपके पास है तो प्लीज चेक इट आउट. आप उसको देखो ध्यान से, आपको समझ में आएगा कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस. लेट मी जस्ट शेयर माय वीडियो मैम फर्स्ट. पेंसिल हाँ जी. मैम पेंसिल न्यू है या गुड क्वेश्चन. एक्चुअली न्यू है क्योंकि वो दोनों को सिलिंड्रिकल फॉर्म में दिखाना चाहते हैं. अगर आप उसको शार्पन पेंसिल को यूज करोगे तो वो आपको सिलिंड्रिकल शेप नहीं दिखेगी. राइट. सो आप समझ सकते हो कि इट्स अ न्यू पेंसिल which is not even sharpened. That is why you can consider that as a cylindrical shape. Okay, question number 7. There is a lead pencil consists of a cylinder of wood. Everyone knows this thing very well, that in a pencil you have a graphite का layer inside, isn't it? एक पूरा cylindrical shape होता है जिसके बाहर Ma'am. wood लकड़ी होती है और उसके अंदर एक graphite की nib होती है. That's how a pencil is made. उसी को हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है. पहले तो जो ग्रेफाइट है उसकी क्वांटिटी कितनी है, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट. देन द वुड you are using around that graphite, what is the amount of wood you are using in making a pencil? So this is the question. Let me just draw it nicely. A lead pencil consists of a cylinder of wood. So you can assume this is how your pencil is, right? This is the total. इसके अंदर there is a very thin layer of graphite. This is known to everyone कि pencil का जो shape है, how is that? There is a very thin layer of graphite, right? The diameter of the pencil is 7 mm. इस पूरी pencil का diameter given है, that is 7 millimeter. And the diameter of the graphite is only 1 mm. ये जो graphite है, ये वाला, ये diameter आपको given है, यहाँ से यहाँ तक का 1 mm. Right? This is given to you. The length of the pencil is 14 centimeter. This is 14 centimeter. First, find the volume of the wood and the volume of the graphite. तो आपको पहले तो ये बताना है कि ये जो ग्रेफाइट आपने यूज किया है इसका वॉल्यूम कितना होगा, कितना ग्रेफाइट आपने यूज किया इसके अंदर,
and then you have to find out what is the volume of the wood which is around the graphite. ठीक है? I hope the question is clear to everyone. Question सबको समझ में आ गया होगा. You have a Yes, pencil ma'am. inside that layer of graphite. You have to find out the quantity. जब भी quantity, capacity ये words आए, so you should be directly reach to volume only. आपको directly volume पे पहुंच जाना है कि we are talking about volume, right? So in the first case for graphite, we are assuming that this is radius 1, right? This radius, पहले हमें diameter given है, sorry, 1 mm. But the length is given to you in centimeters. So the first thing is you need to convert the units. What do you do to convert this into centimeters? Millimeter, smaller 1 units? upon 10. Yes, 1 upon 10 centimeter. Right? 1 upon 10 centimeter, which is 0.1 centimeter. So what is the radius? 0.1. Divided by 2, that is the radius. So radius will be 0.05 centimeter. ठीक है? अब अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है डेसिमल्स में कि इतना शॉर्ट क्यों है, सो आप अपनी पेंसिल को देख लो, उसमें जो एक्चुअल ग्रेफाइट होता है उसका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, उसका डायमीटर, दैट इज व्हाई इट इज गिवन टू इन द मिलीमीटर फॉर्म. So that is why the radius is coming out 0.05 centimeter. Now can you find out the quantity of graphite? Volume of graphite. What is the formula? Pi r square h. I R square H. Formula will remain same, pi r square h. Right? Let us put down the values. 22 by 7 r square, which is 0.05 into 0.05 into 14. This will get cancelled. You can multiply this and let me know what is the answer. 44 into 0.05 and 0.05. This will be 2500. ये हो जाएगा 0.00. 1.1. इसको मल्टीप्लाई करके sorry, will you please repeat it? What do you get after multiplying? 0.11 centimeter cube. ठीक है? This is the volume or the quantity of the graphite which is used in making a pencil. ठीक है? Is it clear to everyone? ये सबको समझ में आ गया? One part is done. Yes, ma'am. All right. Next, you have to find out that what is the quantity or the volume of the wood. Now, if you think of this carefully, आपको क्या निकालना है? ये जो इस ग्रेफाइट के चारों तरफ वुड लगी हुई है, सिर्फ इसकी क्वांटिटी, सिर्फ इसका वॉल्यूम निकालना है. सो हाउ डू यू डू दैट? क्योंकि ये तो अनइवन मैनर है, हमें ये नहीं पता कि इधर भी लेना है इधर भी लेना है. तो हम क्या करेंगे? वी विल फाइंड आउट द टोटल क्वांटिटी and from that we will remove this graphite quantity. तो आपके पास क्या बचेगा? The volume of the wood. ठीक है? Let me just repeat it again. When you have to find out the volume of the wood which is from on the both of the sides of this graphite, so इन दोनों को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? टोटल वॉल्यूम में से आप ग्रेफाइट का इतने पार्ट को आप रिमूव कर दो, हटा दो. तो आपके पास जो भी बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ लकड़ी होगा. इसको आप इमेजिन भी करके देख सकते हो. अगर आप एक पेंसिल में से वो जो ग्रेफाइट का वॉल्यूम है उसको हटा देते हो तो अल्टीमेटली आपके पास सिर्फ वुड बचती है. Isn't it? So the same thing we are going to follow here also. First of all, we'll find out the total quantity of this whole pencil. And after that, we will simply remove the volume of the graphite. हम सिर्फ इस लेयर को वहां से remove कर देंगे, reduce कर देंगे, and whatever we are left with after that, that will simply be the volume of wood. Is it clear to everyone? क्या ये सबको समझ में आ गया है? Yes, ma'am.
No questions from this? Now good thing is volume of graphite is already found out. हमने पहले ही निकाल लिया है, तो हमें इसको ही subtract करना है, ये अंदर वाली layer को ही हटाना है. Let us find out the total volume. So this is for pencil. What is the radius? Diameter is given to you, which is 7 mm. When you convert this into centimeters, 0.7. 0.7 centimeter. What is the radius? 0.35 centimeter. 0.35 centimeter. Height will remain same. Yes, ma'am. Let's write the height also. What is the volume now? Pi r square h. Volume of pencil will be pi r2 square h. So 22 by 7 into, what is radius? 0.35. 0.35. Height is 14. ठीक है? This will get cancelled again on 2. इसको multiply करो and let me know what is the answer. 5.39. 5.39. Please cross check it. Is it clear? सबका सेम ही आ रहा है. Is it true for everyone? Yes, ma'am. ठीक है. Please cross check कर लेना answers को. 5.39 centimeter cube is the total pencil including graphite. ये जो आपने वॉल्यूम निकाला है, ये पूरी ही पेंसिल की क्वांटिटी है, पूरे ही पेंसिल का वॉल्यूम है. लेकिन अब आपको किस चीज का निकालना है? ओनली ऑफ द वुड. तो वुड का निकालने के लिए डेफिनेटली इस पूरे में से आपको कौन सा हटाना पड़ेगा? दैट इज ऑफ द ग्रेफाइट, राइट? सो यू विल सिंपली राइट वॉल्यूम ऑफ वुड is equal to volume of pencil minus volume of graphite. ठीक है? Volume of wood will be the volume of pencil. जो आपकी total pencil है उसमें से you just have to remove the volume of graphite और आपके पास जो भी बचेगा that will simply be wood. So आप इसको subtract कर दो. 5.39 minus 0.11 and this is coming out 5.28 centimeter cube. ठीक है, ये आपका आंसर आ गया. यहाँ पर आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. प्लीज गो थ्रू इट एंड लेट मी नो इफ देयर इज एनी इशू, एनी प्रॉब्लम. No, ma'am. ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया है. इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. एंड प्लीज बी वेरी केयरफुल. जब हम वॉल्यूम और एरियाज की बात करते हैं, सो एरिया इज समथिंग विच यू कैन सी. जो आपको क्लियरली दिखाई देती हैं चीजें, वो आपका एरिया होता है 2 डायमेंशन में. 3 डायमेंशन में हम बात करते हैं उस क्वांटिटी की, उस कैपेसिटी की और व्हाट यू कैन फिल इन दैट. So according to that your areas your formulas and your answers vary. क्योंकि आपको जैसे यहाँ पर वुड का निकालना था, आपने दोनों वॉल्यूम्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया. अगर यहाँ पर एरिया निकालना होता, मान लो आपसे पूछा जाता कि इस ग्रेफाइट का एरिया बताओ, या फिर ये एक पाइप की शेप अगर आपको नजर आ रही है तो इसका एरिया बताओ, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा वेरी कर जाता इन द केस ऑफ एरिया ओनली. सो ये चीज प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से चेंज होता है. You just need to do a lot of practice. So next, here we have finished our exercise 13.6 very nicely. Please do revise all these exercises because you know soon we are going to have our PTs. So उसमें definitely few of the exercises I'm going to give you. So आप उसके according अपनी practice शुरू कर दो. And meanwhile, if you get any doubt, so always welcome. Exercise 13.7. As I already told you that this is the easiest exercises of all the exercises, क्योंकि इसमें कुछ भी specifically नया add नहीं करना है. जैसे इसमें इतनी complications तो थी कि आपको subtract करने थे 2 वॉल्यूम, इसमें ऐसा भी नहीं है.
यू जस्ट नीड टू यूज वन फॉर्मूला, और इसके अलावा बाकी जो हमें कोन के बारे में ऑलरेडी पता है वो हम करने वाले हैं. इफ यू रिमेम्बर एक्सरसाइज 13.3, उसमें हमने पढ़ा था एक कोई भी कॉनिकल शेप के एरिया को कैसे फाइंड आउट करते हैं. कॉनिकल शेप लाइक एक आप बात कर सकते हो टेंट की, बर्थडे कैप, या बर्थडे कैप हो सकता है, आइसक्रीम कोन हो सकता है, ये सारे आपके कॉनिकल शेप हैं. तो वही चीज आपको यहाँ पर निकालनी है कि उस कॉनिकल शेप में आप कितनी अमाउंट ऑफ उसकी कैपेसिटी क्या है या कितनी क्वांटिटी आप उसमें फिल कर सकते हो एक कॉनिकल शेप में. ठीक है. सो जैसे आपको एक सिंपल सा अगर जानना हो तो एक आइसक्रीम कोन में कितनी आइसक्रीम भरी जा सकती है अप टू द लेवल, ऊपर तक नहीं, अप टू द लेवल. सो दैट इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ योर कोन. सो लेट अस राइट द फॉर्मूला फर्स्ट. वॉल्यूम ऑफ कोन, इसमें आपको कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको सिलेंडर का पता है, ये सिलेंडर का है, उसका आपको 1/3 पार्ट लेना है, तो वो आपका कॉनिकल वॉल्यूम हो जाएगा. ठीक है. कितना पार्ट लेना है आपको? 1/3. So the volume of cone simply be 1/3 of the volume of the cylinder. आप इसको सिंपली सोच भी सकते हो कि एक आपके सिलेंडर के 3 पार्ट कर दो, तो जो एक एक पार्ट बचेगा वो सारे ही आपके कॉनिकल शेप होंगे. ठीक है. मतलब अगर आप इसको ऐसे देखो तो ये आपका अगर सिलेंडर है, ठीक है, अगर आप इसको ऐसे कर दो तो ये 1 2 3 पार्ट्स हो गए और तीनों ही अपने आप में कॉनिकल शेप्स हैं. ठीक है. इसीलिए हम पाई आर स्क्वायर एच का एग्जैक्टली 3rd पार्ट लेते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, एवरी सिंगल पार्ट इन इटसेल्फ इज अ कोन. ठीक है. दैट इज व्हाई वी हैव वॉल्यूम ऑफ द कोन एज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. लेट अस राइट द एरिया. व्हाट इज द CSA ऑफ कोन? बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज इट. बीच बीच में हमें जरूरत पड़ेगी इसकी. याद है किसी को? कर्व्ड सरफेस एरिया. एक कॉनिकल शेप है. ये कॉनिकल शेप आपने जिस भी टर्पलिन या किसी भी क्लोथ से या कोई भी जो आपकी कैप है, ये वाला जो pi एरिया RL. इज, यस, दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया. इसमें आप एक सर्कल ऐड कर दो, pi r r plus l, so that will be total surface area. There is a relation, if you remember, there is a relation between L, H and R. Let me just show it. ये जो आपकी परपेंडिकुलर हाइट होती है यहाँ तक, ये होती है हाइट. ठीक है. ये होती है रेडियस और ये होती है आपकी स्लैंटेड हाइट L. And if you see this carefully, this is actually a 90-degree angle. This is perpendicular height. So we can always use our Pythagoras theorem, which says that perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse square, right? So we know another formula, L square is equal to H square plus R square. This also we are going to use a lot of times. ठीक है. क्वेश्चन शुरू करें. Yes, ma'am. Okay. First question is very easy. Find the volume with radius and height is already given to you. बहुत ही easy है. इसके दो parts हैं. I'm doing first part. Second part is your homework. Radius is given to you 6 centimeter. Height is given to you 7 centimeter. You have to find out volume. So you will simply write volume of cone is equal to 1/3 pi r square. 1/3 pi is 22/7. R square, which is 6 into 6, and h is 7. This will get cancelled. 3 2s are 6. So when you multiply this 24, this is 264 centimeter क्यूब. ये सेंटीमीटर है. बस आंसर निकल गया आपका. इजी है. Yes, ma'am. Second part is your homework.
क्योंकि वो सेम ही है, रेडियस और हाइट गिवन है, आपको ऐसे ही वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालना है, सॉरी पुट करना है उसमें वैल्यूज को, एंड दैट्स हाउ यू कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम. Question number 2, again having two parts, which is again very very easy. Just one extra thing, one extra step you need to do. Again you have to find the capacity in liters. तो पहली चीज तो ये हो गई कि आपको जितना भी वॉल्यूम आएगा उसको लीटर में कन्वर्ट करना है. सेकेंडली आपको रेडियस गिवन है और स्लैंटेड हाइट गिवन है, लेकिन फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए, हाइट. सो इसका मतलब आपको पहले निकालनी पड़ेगी हाइट. So let us do first part. Radius is 7 centimeter. Slanted height is 25 centimeter. Find out the volume. To find the volume, first of all, you should know h. Height honi chahiye. So we are going to use the Pythagoras theorem, which says L square is equal to R square plus H square. Right? L is known. Let us put the values. Equals to 7 square plus h square. This is 625 equals to 49 plus h square. Since you have to find out h, that is the unknown quantity, तो आपको क्या करना है, इस 49 को इधर लेकर जाना है. This is in plus, so when you bring it to the other side, this will be in minus. ठीक है, subtract them. 15 minus 6, 9, that will be 6. 12, 11 minus 4 will be 7, 576 h square. Take the square root. 576 का square root करेंगे आप और इधर आ जाएगा h. You can do the prime factorization also, though I know it 24. directly. हाँ, आप डायरेक्टली कुछ स्क्वायर्स को याद रख लो. देखो एक अच्छी बात मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो L स्क्वायर है, जो भी ये आपके पाइथागोरस थ्योरम वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें मोर और लेस आपका यही चीजें रिपीट होती हैं. जैसे 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 25, 24, ये कुछ ऐसे होते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को बिल्कुल एग्जैक्टली सेटिस्फाई कर सकते हैं. सो ठीक है, आपको बस यही कुछ स्क्वायर्स हैं जो अगर आप अच्छे से याद कर लो तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इफ यू नो इट डायरेक्टली. अदरवाइज भी ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके आप फैक्टर्स बना लो, 2 के पेयर्स बनाओ और 1 वैल्यू को बाहर निकाल लो. आई होप ये सबको आता होगा, अगर नहीं आता है तो बता देना. दिस इज 24 सेंटीमीटर, दैट इज द हाइट. ठीक है, अब आपके पास हाइट है, रेडियस है, डायरेक्टली आप वॉल्यूम निकाल सकते हो. So the volume is 1/3 pi r square h. So once you put the values, 1/3 pi, radius कितनी given है आपको, 7 into 7, and height you have just found out, that was 24. Cancel them. 3 8s are 24. This is 22 into 56. हाँ जी बताओ ये कितना आ रहा है. 1 2 3 2, यही आ रहा होगा आई गेस. जस्ट क्रॉस चेक कर लो इसको. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यही है. ठीक है, so this is the volume of the cone, but this is in centimeter cube. Now you have to find the capacity in liters. आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करना है. So how do you convert that? You know that 1 centimeter cube is equal to 1000 liter. Yes, ma'am. यही होता है, कुछ गलत लिख दिया है. यही होता मैम. एक बार इसको चेक करना. मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे 1 मीटर क्यूब होता है. जस्ट चेक इट. मैम यही है. हाँ गलत मैम नहीं यही है, है. ये नहीं है भाई. मैं समझ गई थी क्वेश्चन देखते ही कि कुछ मैम गलत है. 1. ये है. सी द डिफरेंस. हाँ मैम डिफरेंस 1/. देखो दोनों में.
यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1000 लीटर के इक्वल कर दिया है, जो कि एक्चुअली मीटर क्यूब होता है यहाँ पर। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। सो 1/1000 लीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ से आप 1000 को डिवाइड कर दो, सो दिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। आपको कितने का निकालना है? यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू लीटर्स। सो यू विल सिंपली राइट दिस इम्प्लाइज 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1/1000 लीटर के। So 1232 centimeter cube will be, what do you do here? Multiplied by 1 upon. Yes, very good. We will simply multiply, as you know, unitary method, 1, and this is higher value. Divide this, you will get 1.232 liters. So this is the volume of the cone in liters. ठीक है, समझ आ गया ये सबको? Yes, ma'am. फाइनली आप लिख सकते हो कैपेसिटी ऑफ conical vessel is equal to 1.232 liters. Done. इसका सेकेंड पार्ट है विच इज अगेन सिमिलर, उसमें भी आपको एग्जैक्टली सेम यही प्रोसेसेस करने हैं। कैन आई लीव दैट एज होमवर्क? कर लेंगे उसको सब एज अ होमवर्क। सेकेंड पार्ट है वो Yes, बिल्कुल सेम ही है इसकी तरह। ठीक है, सो इसका जो सेकेंड पार्ट है आई एम लीविंग दैट एज होमवर्क। ट्राई दिस योरसेल्फ। अगर आंसर नहीं आता है तो मुझसे पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। आई होप इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट एनीवे। Question number 3. The height of a cone is 15 centimeter and the volume is also given to you. Find the radius of the base. बहुत ही easy question है. Let us write down what is given to us. Height is given 15 centimeter. Volume of cone is also given. That is 1570 centimeter cube. और आपको क्या निकालना है इसमें? रेडियस। सो सिंपल है, आपको फॉर्मूला पता है, वहां पर सारी वैल्यूज को पुट करो। वन थिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ, स्पेसिफिकली दे हैव मेंशन्ड कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है। ठीक है, यूज पाई इक्वल्स टू 3.14। तो जहां पर भी ये मेंशन हो वहां पर आप वही वैल्यू यूज करोगे। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं, 1/3 pi r square h. Let us put down the values. This volume is given to you 1570. 1/3 pi is 3.14. Radius is not given, that you have to find out. Height is 15. ठीक है, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। So 1570, अगर आपको सिर्फ ये वैल्यू निकालनी है, so what do you do with the rest of the terms? 3.14 and 5. These two terms are in multiplication. You bring it to the other side. तो ये दोनों ही टर्म्स आपकी हो जाएंगी डिवीजन में। ठीक है, अब आपके पास बहुत ही सिंपल सा बच्चा है करने के लिए कि आपको इसको डिवाइड करना है और इसके फैक्टर्स बनाने हैं। सो लेट अस सी हाउ डू वी डू दैट। लेट अस रिमूव द डेसिमल फर्स्ट। यू विल बी हैविंग 100। ठीक है, यू कैन कैंसिल दिस, 5 2s are 10. You can cancel this with 2. This is 157, right? This 10 you bring it here, ये multiplication में हो जाएगा। 1570 into 10 divided by 157, ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा 10 से। This is r square। ठीक है, सो अब तो बहुत ही इजी है, आपको आंसर अभी तक मिल गया होगा। 100 is equal to r square. Root of 100 is equal to r. That implies r is 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 को आप 10 into 10 लिख सकते हैं। सो एक पेयर बन जाएगा। टेक आउट 1 कॉमन, दैट विल बी 10। सो दिस इज द आंसर। एक बार फिर से देख लो।
हाइट आपको गिवन था, वॉल्यूम गिवन था. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली वी हैव डन सेवरल टाइम्स. तो जो भी आपको वैल्यूज गिवन है, जस्ट पुट देम डाउन, सॉल्व इट, टेक द स्क्वायर रूट, दैट्स ऑल. ठीक है. Is it okay to everyone? Question number 3. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Let us move to question number 4, which is exactly similar to this question. बिल्कुल similar है. और एक अच्छी बात यह है कि आंसर आपको पाई में ही गिवन है, तो आपको बहुत ज्यादा सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा. Let us see how. Height is again given to you, 9 centimeter. Volume of the right circular cone, volume is also given, that is 48 pi सेंटीमीटर क्यूब. ये आपको वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है. और अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर ये आपको पाई की फॉर्म में ही गिवन है. सो पाई की फॉर्म में होने का एक बेनिफिट होगा. लेट अस सी हाउ. v is equal to 1 by 3 pi r square h, that you know. Let us put the values now. 48 pi is equal to 1 by 3 pi r square. You have to find it out. Height is 9. 3 3s are 9. You have to find out r square. So again do the same thing. जो भी ये वैल्यू है, इसको छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज को आप डिवाइड में ले आओ. पाई इंटू 3, दिस पाई विल गेट कैंसिल. यहाँ पर मैं कह रही थी कि ये बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर 22/7 होता तो आंसर आपका डेसिमल्स में और मे बी इवन लॉन्गर हो सकता था, because then you had to multiply 48 into 22 divided by 7. Definitely it would be a longer answer, but instead they have given you pi only. So yeah, they have just made it easy. So pi will get cancelled. You cancel this. This is 16. Okay, 16 is r square. So square root of 16. बताइए square root of 16 क्या होता है? 4. So radius is coming out 4 centimeter. Question is find the diameter. So diameter क्या हो जाएगा? Into 2. Radius into 2. R into 3, radius into 3, that is 4 into 2, which is 8 centimeter. And this is done. Yeah. हो गया ये. Isn't it easy? I told you in the starting, ये exercise बहुत ज़्यादा easy है. आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना, सब्स्टिट्यूट करना, सॉल्व करना, रिड्यूस करना आना चाहिए. रेस्ट इज वेरी इजी. जस्ट गो थ्रू इट और बता दो अगर कोई प्रॉब्लम है तो. No problem, ma'am. No problem. Shall we move on to the next question now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Question number 5 says there is a conical pit. एक गड्ढा है कोन की शेप में, जिसका डायमीटर गिवन है और हाइट गिवन है. फाइंड द कैपेसिटी. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. मुझे लग रहा है कि अभी आधे बच्चों को तो शायद समझ में भी आ गया होगा कि आपको क्या और कैसे निकालना है. डायमीटर इज गिवन टू यू विच इज 3.5 मीटर. डेप्थ और बेसिकली हाइट जिसको हम कह सकते हैं दैट इज 12 मीटर. सॉरी ये मीटर में है. ठीक है. व्हाट इज द रेडियस? पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं. दैट इज हाफ ऑफ द डायमीटर. सो 3.5 डिवाइडेड बाय 2. इसको चाहो तो आप आगे रिड्यूस करके लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1.2575, sorry, 1.75 meter. This is the radius, right? Find the capacity in kiloliters. बस एक ही अलग से उन्होंने पूछ लिया है कि आपको किलोलीटर्स में निकालनी है कैपेसिटी. So let us first find out this in meter cube. पहले हम मीटर क्यूब में निकाल लेते हैं. So capacity of conical pit. What is the formula? 1/3 pi r square h. 1/3 pi r square h.
So 1/3 pi is 22 by 7 r square. As I told you, you can take 1.75 either, or you can take 3.5 by 2. It's completely fine. ठीक है, and height is also given to you, which is 12 meter. All right, थोड़ा सा इसको हम solve कर लेते हैं. 3 4s are 12. This will get cancel on 7. Let us remove the decimal. 100 आ गया. 7 या बिना डेसिमल के भी कर सकते थे. 7 2s are 14, 7 5s are 35, राइट. ठीक है, यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो. 25 1s are 25, 25 4s are 100. दिस 4 will get cancel. ये 4 और 4 कैंसिल हो गए. तो अल्टीमेटली आपके पास क्या क्या बच गया देखो. 22 ये कैंसिल हो गया इनटू 1.75. ठीक है, आई होप सबका यही आ रहा होगा. जस्ट मल्टीप्लाई दिस एंड लेट मी नो व्हाट इज द कैपेसिटी. इसे मल्टीप्लाई करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है. 1.75 38.5 meter cube, right? This is the capacity of this conical pit. ये आपका आया है मीटर क्यूब में. You have to convert this into kiloliters. So let us first see the relation. The relation is very easy. 1 meter cube आपका होता है 1000 लीटर के. ये तो मुझे पता था बहुत अच्छे से. वहां पर सेंटीमीटर क्यूब में थोड़ा सा लीटर, और 1000 लीटर का मतलब कितना हुआ? 1 किलोलीटर. 1 kiloliter. This is equal to, and 1 kiloliter is equal to 1000 लीटर. ये भी पता है सबको. इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो आप खुद ही पता लगा सकते हो कि ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल हैं, क्योंकि 1 मीटर क्यूब भी 1000 के इक्वल होता है और 1 किलोलीटर भी 1000 के इक्वल होता है. सो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर. इसका क्या प्लस पॉइंट हुआ कि आपको इसमें कोई भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इस मीटर क्यूब की जगह पे डायरेक्टली किलोलीटर लिख सकते हो बस, और आपका आंसर हो जाएगा. और 38.5 किलोलीटर बस, क्योंकि ये दोनों ही यूनिट्स इक्वल होती हैं. तो आप चाहो तो मीटर क्यूब लिख लो या फिर आप किलोलीटर लिख लो, दोनों सेम होते हैं. सो इंस्टेड ऑफ दिस मीटर क्यूब आई हैव लिटरली जस्ट रिटन डाउन किलोलीटर and the answer is done. ठीक है, is this question fine to everyone? Question number 5. Yes, ma'am.